हरे कृष्णा। आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल जिज्ञासु मुनि पर। आज हम कुछ खास बात करने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक है इग्नोरेंस, नॉलेज एंड गुरु। तो आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही अच्छे वर्ड्स के साथ। गुरुर् ब्रह्मा, गुरुर् विष्णु, गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो आज हम जानेंगे कि किस तरह हम इग्नोरेंस को नेविगेट करते हुए नॉलेज कल्टीवेट करते हैं यूजिंग अ रियल गुरु। आज का हमारे एजेंडा में जो टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं वो ये है इग्नोरेंस। we'll understand about the need for the knowledge. We'll go through the meanings and definitions of guru. We'll see the method of approaching a guru. We also understand what is a real guru. We also understand the importance of parampara, and we'll see how with our sincerity we can be successful in our life. तो मिस्टर जिम रॉन कहते हैं, ignorance is not bliss, ignorance is poverty, ignorance is devastation, ignorance is tragedy, and ignorance is illness. It all stems from ignorance. So हम देखते हैं, ये हमारी गरीबी, ये हमारी बीमारी, ये हमारे दुख, ऑल सबका मूल कारण ये इग्नोरेंस ही है। अगर आप अपने हेल्थ के प्रति इग्नोरेंट हैं तो सफरिंग तो आने ही वाली है। मिस्टर मार्टिन लूथर कहते हैं, नथिंग इन द वर्ल्ड इज मोर डेंजरस देन सिंसियर इग्नोरेंस एंड conscientious stupidity. So ignorance is the most dangerous thing. We should move out from ignorance towards the knowledge. So let's just understand what is the root cause of all sufferings. So our Shastras informs us that the root cause of all suffering is ignorance. And how from ignorance we get suffering. So there are we from ignorance to suffering we reach through two different ways. So because of our ignorance, we commit mistakes. And once you commit mistakes, definitely you have to suffer. Just like the previous example which I have given to you, if you have during the corona time, if you have not taken care of social distancing, wearing the mask, so you have committed the mistake, then definitely you will get infected with the disease. So you are going to suffer. Then ignorance, you are leading a sinful life, and then finally you are suffering. We in my last video we have taken the example of how how Daku Ratnakur, because he was ignorant, he was leading a sinful life of being a Daku. But once he become in knowledge, his suffering ends. So ignorance is the root cause. So we cannot keep on fixing our mistakes. If we focus on our mistakes or trying to become from sinful to pious, that is not the right way. We should always try to fix the root of the problem. And the root of the problem here is ignorance. अज्ञानता ही सबसे बड़ा अंधकार है। तो अगर आप अपनी परेशानियों से बचना चाहते हैं, अपने दुखों का अंत करना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपनी इग्नोरेंस का अंत करिए। इग्नोरेंस का अंत होगा तो आप गलतियां नहीं करेंगे। आप गलतियां नहीं करेंगे, आप एक पाप में जीवन नहीं जिएंगे, तो आपकी सफरिंग का, आपके दुखों का स्वतः ही नाश हो जाएगा। So if we do something wrong out of ignorance, we must suffer. That is the law. Ignorance is no excuse. एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे एक छोटा बच्चा है, वो आग के साथ खेलता है और उसका हाथ जल जाता है। तो क्या आप आग को ब्लेम करते हैं कि अरे भाई ये तो छोटा बच्चा था, इसे क्यों जलाया?
इसको तो पता नहीं था कि आग से हाथ जल जाता है। जी नहीं। सो इग्नोरेंस इज नो एक्सक्यूज। चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, नेचर्स के लॉ ऑफ गॉड, they are so strict and so resilient that they will never excuse. If you remain in ignorance, you have to suffer. So please come out from ignorance. And everybody is suffering due to their ignorance. ये जानना बहुत जरूरी है। कई बार हम देखते हैं कि मनुष्य की आदत होती है कि वो हमेशा कारण ढूंढता है कि मेरी ये सफरिंग किसी और की वजह से है। बट हमारी सफरिंग का कारण हम खुद है। जब तक हम इग्नोरेंस में हैं, हमारी सफरिंग कंटिन्यू रहती है। और जिस दिन हम ज्ञान के इस प्रकाश में आ जाएंगे, हमारे इस सारी सफरिंग का अंत हो जाएगा। सो देर आर टू डिफरेंट वेज। वन इज टू लीड योर लाइफ, अज्ञानता के अंधकार में अपनी जिंदगी जिए। और दूसरा है ज्ञान के प्रकाश में अपना जीवन जिए। एक बार फिर से चॉइस आपके पास है। आपको चुनना है, आप इग्नोरेंस की जिंदगी जीना चाहते हैं या ज्ञान के प्रकाश में चलना चाहते हैं। तो दोस्तों, प्लीज सही मार्ग चुनिए। तो पर्पस ऑफ ह्यूमन लाइफ के बारे में एक बहुत ही सुंदर वर्स आता है जिसमें कहा गया है, अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा मृतगमय। तो असत से सत की तरफ जाइए, टेम्परेरी से इटर्नल की तरफ जाइए, अंधकार से प्रकाश की तरफ जाइए, डार्कनेस से लाइट की तरफ जाइए, मृत्यु से अमरता की तरफ जाइए, डेथ टू डेथलेसनेस जाइए। तो कोशिश करिए दोस्तों, इस अंधकार, इस इग्नोरेंस के अंधकार से बाहर निकलिए, ज्ञान के प्रकाश की तरफ चलते हैं। और हमारे इस चैनल का माध्यम ही यह है कि हम इग्नोरेंस को दूर करके नॉलेज की तरफ आपने सभी सब्सक्राइबर को ले सकें। और इस सफर में मैं भी आपके साथ हूँ। एक बहुत ही सुंदर सा एक्रोनिम आता है, ऑलवेज सीक नॉलेज आज। और जैसा कि आप जानते ही हैं, मेरे इस चैनल का नाम ही है जिज्ञासु करना, जिज्ञासा करना, जिज्ञासा सवाल पूछना, आस्क। तो अगर आप भी मेरी तरह आस्क कर रहे हैं, तो यू आर ऑलवेज सीकिंग नॉलेज एंड दैट्स वेरी गुड। अब सवाल आता है कि नॉलेज ली कैसे जाए। तो इसके बारे में हमारे शास्त्रों में एक बहुत ही अच्छा वर्ड यूज किया गया है। आप देखिए किस तरह हमारी भाषा जो है इतनी रिच भाषा है कि हर शब्द का इतना सटीक मतलब दिया गया है। आप एक शब्द सुनते हैं गुरु, दो अक्षरों का बना है, गु एंड रू। वेयर गु इज डार्कनेस, डार्कनेस ऑफ इग्नोरेंस, अज्ञानता का अंधकार। और रू इज रिमूवर। तो जो आपकी अज्ञानता के अंधकार को दूर करता है, उसी को आप गुरु कहते हैं। ये कोई फैशन के लिए रखने वाली चीज नहीं है कि सबके गुरु हैं तो चलिए मैं भी रख लेता हूँ एक। जी नहीं। गुरु वो है जो आपकी अज्ञानता के अंधकार को दूर करता है और आपको आपको ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित करता है। वही गुरु है। ही इज द ट्रू गुरु। एक और रेफरेंस लेते हैं गौतमीय तंत्र में, जहाँ गुरु प्रणाम मंत्र दिया गया है। और वो कुछ इस तरह से है, ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। So I was born in the darkest ignorance, and my spiritual master opens my eyes with the torch of knowledge. I offer my respectful obeisances unto him. तो हम सभी एक घोर अंधकार में पैदा हुए हैं। वी वर बॉर्न इग्नोरेंट। और एक सच्चा गुरु ही अपने ज्ञान के प्रकाश से हमारी वो अंधकार की आंखें खोल सकता है और हमें अज्ञानता के अंधकार से ज्ञान की तरफ ले सकता है। जब ये दो बातें आप अपने गुरु के प्रति ध्यान रखेंगे, इन दोनों की इंपॉर्टेंस को आप समझेंगे, तो डेफिनेटली आप अपने आप ही विनम्र हो जाएंगे और श्रद्धा के साथ उन गुरु के चरणों में पड़ जाएंगे। अब नेक्स्ट आता है कि
गुरु तो समझ में आ गया। अब गुरु को अप्रोच कैसे करना है, गुरु को कैसे खोजें, और उससे 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 ज्ञान लेने की विधि क्या है? तो श्री कृष्णा जो जगत गुरु हैं, उनसे अच्छा ये एडवाइस कौन दे सकता है? उन्होंने अपने वर्स नंबर 4.34 में कहा है, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनाम तत्वदर्शिना। तो आध्यात्मिक गुरु के पास जाइए, सत्य को जानिए, विनम्र होकर उससे ज्ञान प्राप्त करने की जिज्ञासा प्रकट करिए, तो ज्ञान प्राप्त होगा, और उनकी सेवा करिए। ऐसे सिद्ध संत आपको दिव्य ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने उस परम सत्य की अनुभूति कर रखी है। तो आप देखते हैं इसमें चार बड़ी मेन चीज आई हैं। तो पहला तो है ट्राई टू लर्न। हमें सीखने की जिज्ञासा होनी चाहिए। वी शुड ऑलवेज बी इंक्विजिटिव, बट वी आर नॉट। हम देखते हैं छोटे बच्चे होते हैं, वो हमेशा से सवाल पूछते हैं, बट जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम सवाल पूछना बंद कर देते हैं। हमारी लर्निंग स्टॉप हो जाती है। और जिस दिन हमारी लर्निंग स्टॉप हो गई दोस्तों, समझिए हमारी ग्रोथ भी स्टॉप हो गई। सो ऑलवेज ट्राई टू लर्न। लेकिन अब ये लर्निंग कैसे करें? तो उसके लिए दूसरा पार्ट आता है, बाय अप्रोचिंग अ स्पिरिचुअल मास्टर। एक अच्छे गुरु के पास जाके आप लर्न करिए। यहाँ कृष्णा नहीं कह रहे हैं कि आप कोई भी किताब उठा लीजिए या किसी कॉलेज में चले जाइए एंड देन यू गेट द नॉलेज। नो, ही इज सेइंग दैट यू हैव टू अप्रोच अ गुरु। गुरु को अप्रोच करना पड़ेगा लर्निंग के लिए। अब गुरु के पास अप्रोच भी कर लिया, तो उसके बाद क्या? तो तीसरी चीज उन्होंने कही है, इंक्वायर फ्रॉम हिम सबमिसिवली। इंक्वायरी करिए, जिज्ञासा करिए, बी इंक्विजिटिव, विथ बट विथ अ सबमिसिव एटीट्यूड, नॉट विथ अ चैलेंजिंग एटीट्यूड। आप सभी देखते हैं कि हर कोई आजकल ज्ञानी बना हुआ है, और हम पहले देख चुके हैं कि हम सभी अज्ञानता के अंधकार में हैं, और उस अंधकार में भी अपने आप को ज्ञानी समझना, इससे बड़ा अंधकार नहीं हो सकता। तो पहले ये मानिए कि आपको कुछ नहीं पता है, उसके बाद आप सवाल पूछिए, तब आपको जवाब मिलेंगे। तो ये सब में से स्पिरिट होना चाहिए। आपकी स्पिरिट अगर ये रहेगी कि नहीं, मुझे सामने वाले को गलत साबित करना है, तो फिर आप कैसे ज्ञान ले पाएंगे? आपके ज्ञान ज्ञान का जो कटोरा है, उसको आप अपने पहले की अज्ञानता से खाली नहीं करेंगे, तो नया ज्ञान कैसे लेंगे? नहीं ले सकते। और चौथी पॉइंट आई है, टू रेंडर सर्विस। सेवा। जी हाँ, सेवा बहुत महत्वपूर्ण है। किन्हीं भी दो व्यक्तियों के बीच में अगर एक स्ट्रांग रिलेशनशिप बनानी है, तो सेवा की बहुत जरूरत है। कोई भी रिलेशनशिप अच्छी सेवा भाव के बिना नहीं बन सकता। अब बात करते हैं अरेंज मैरिजेस की। जो पहले पेरेंट्स जो थे, लड़का और लड़की के लिए, लड़का और लड़की चुन लिया करते थे शादी के लिए, और उनकी शादी हो जाया करती थी। आप देखते थे तब तक लड़के और लड़की के बीच में प्यार नाम की कोई चीज नहीं होती थी। उनके रिश्ते की शुरुआत ही सेवा के भाव से होती थी। जहाँ वाइफ में हस्बैंड को सर्व करने का भाव है, हस्बैंड में वाइफ को सर्व करने का भाव है। तो सेवा से ही शुरुआत हो रही है उनकी। और ये सेवा जैसे जैसे बढ़ रही है, तो उनके रिश्ते में प्रेम भाव बढ़ता है। तो सेवा एक स्ट्रांग रिलेशनशिप के लिए बहुत जरूरी है। और जब ये सेवा भाव प्रेम भाव में बदल जाएगा, तो आप समझिए कि आपका ये रिश्ता अटूट बन गया है। तो हमें हमारे गुरु को साथ भी ऐसा ही रिश्ता बनाना है, और उसके लिए गुरु को भी सर्व करना है, सो दैट वी कैन ऑल्सो मेक अ स्ट्रांग रिलेशनशिप विथ हिम, एंड देन ओनली ही कैन इम्पार्ट द परफेक्ट नॉलेज टू अस एंड रिमूव ऑल आवर इग्नोरेंस। अब हम गुरु के बारे में तो समझ गए हैं। अब सवाल आता है कि रियल गुरु और फेक गुरु कैसे पहचाने कि हमारा गुरु रियल है? तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि गुरु विल नॉट मैन्युफैक्चर एनीथिंग। तो गुरु कभी ये नहीं कहेगा कि मेरे हिसाब से तुम्हें ये कर लेना चाहिए, या मैंने अपने 4 साल के तपस्या से ये ज्ञान हासिल किया। जी नहीं, ज्ञान तो पहले से ही है। आप रियलाइज कर सकते हैं उस ज्ञान को, आप मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते ज्ञान। जी नहीं, ये अलाउ नहीं किया गया। और ये परफेक्ट नॉलेज जो है, यही हमारे वेदास की जो नॉलेज है, वही परफेक्ट नॉलेज है। तो नॉलेज तो हमारे पास ऑलरेडी है। आपको ऐसे गुरु की जरूरत नहीं है जो अपनी नॉलेज खुद मैन्युफैक्चर कर रहा है।
आपको जरूरत ऐसे नॉलेज की है जो ट्रू नॉलेज को वेदांत से आप तक कन्वे कर सके। दूसरा पॉइंट आता है कि वॉट एवर द गुरु सेज इज इन अकॉर्डेंस विद द स्क्रिप्चर एंड द प्रीवियस आचार्य। यहाँ दो पॉइंट ध्यान देने की बात है। पहली बात तो वो स्क्रिप्चर्स के अकॉर्डिंग है, और दूसरी बात प्रीवियस आचार्य। ये दोनों पॉइंट्स होना बहुत जरूरी है। कई बार आप देखते हैं कि लोग स्क्रिप्चर का रेफरेंस देके कुछ बात कहते हैं, बट हमें पता लगता है कि उनके प्रीवियस आचार्य तो कुछ और कह रहे थे, और वो कुछ और कह रहे हैं। तो तभी ये हमारे लिए पहली खतरे की घंटी बज जाती है कि ये एक रियल गुरु नहीं हो सकता, क्योंकि वो अपने मनोभाव से ज्ञान को बदल रहे हैं। तो सच्चा ज्ञान आप तक नहीं पहुंचेगा, सो बी केयरफुल। तीसरी चीज आती है फेक गुरुज और रियल गुरुज में डिफरेंस पहचानने के लिए, कि रियल गुरु विल नेवर गिव यू अ मंत्रा और सीक्रेट or maybe some siddhi and say that okay, you do this something like this and I'll make you the god in another 3 months or 6 months. That is not guru's business. ये सच्चे गुरु का व्यवहार नहीं है। कोई सीक्रेट फॉर्मूला नहीं है। लॉर्ड श्री कृष्ण पहले ही बता चुके हैं कि हमें सबमिसिव होके इंक्वायरीज करनी है, सेवा करनी है। वही एक तरीका है असल ज्ञान को हासिल करने का। और लास्ट आता है कि गुरु इज नॉट अ बिजनेसमैन। अगर कहीं पर आप देखते हो कि गुरु और शिष्य एक दूसरे से पैसे का व्यवहार करते हैं, प्रॉपर्टी के लिए लेन देन करते हैं, तो फिर वो सच्चे गुरु नहीं हो सकते। अगर वो आपसे ये डिमांड करते हैं कि तुम मेरे लिए इतनी दक्षिणा लाते हो, तो मैं तुम्हें ये सिद्धि दे देता हूँ, तो ये तो व्यापार होता है। और विद्या कभी भी व्यापार से नहीं दी जाती। सच्ची विद्या हमेशा दान की जाती है, और वो आपके सेवा भाव और आपकी जिज्ञासा, इन दोनों का कॉम्बिनेशन जब अच्छे से बनेगा, तो ही आप जो वो ज्ञान है गुरु से ले सकेंगे। तो इन पॉइंट्स के बेसिस पे हम एक रियल गुरु और फेक गुरु के बीच में डिफरेंस कर पाएंगे। फिर बात आती है कि जब भी हम गुरु कहते हैं तो एक शब्द हमेशा आता है, गुरु परंपरा। तो परंपरा की जरूरत क्यों है? तो परंपरा के लिए आता है कि आपने एक बहुत ही पुराना गेम अगर आपने सुना होगा, तो हम देखते थे कि 10-15 बच्चों को आपस में बैठा दिया जाता था, और जो क्लास टीचर होता था वो पहले बच्चे के कान में कुछ कहता था, और उससे कहता था कि यही चीज रिपीट करो आप दूसरे के कान में। दूसरा बच्चा तीसरे के कान में रिपीट करता था, तीसरा बच्चा चौथे के कान में रिपीट करता था, और इस तरह से वो रिपीट होते होते फाइनली जो लास्ट बच्चा होता था वो उसी स्टेटमेंट को टीचर के कान में कहता था। और हम देखते थे कि जब भी ये खेल खेला जाता था, तो टीचर का जो ओरिजिनल स्टेटमेंट होता था वो इतनी बार चेंज होकर के जो फाइनल जब वो सुनता था लास्ट बच्चे से, तो उसका तो मीनिंग और कभी कभी तो मैं कहता हूँ पूरा स्टेटमेंट ही चेंज हो जाया करता। तो आप देखते हैं कि किस तरह से ओरिजिनल टीचिंग, ओरिजिनल पर्पस और ओरिजिनल लर्निंग अगर हमें मेंटेन करनी है, तो एक प्रॉपर डिसाइप्लिक सक्सेशन, प्रॉपर परंपरा होना बहुत जरूरी है। नहीं तो वो कभी भी वो नॉलेज जो है वो कॉन्कोट हो जाएगी, क्योंकि सभी अपने मन के हिसाब से निकालने में लगे हैं। आप सुनते हैं कि कई बार बहुत सारे फाइनेंस इन्फ्लुएंसर कहते हैं कि हम गीता से दिव्य ज्ञान लेके आ चुके हैं, इसलिए हम ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो हर कोई ज्ञान को आप क्या लेना चाहते हैं, आप उसी भाव से उस किताब को पढ़ते हैं, तो आपको वही भाव मिलता है। लेकिन सच्चा भाव लेना है तो आपको एक परंपरागत गुरु के टच में आना पड़ता है। तो ये एक और तरीका हो गया जिससे आप एक रियल गुरु और फेक गुरु के बीच में डिफरेंस कर सकते हैं। और परंपरा के लिए कहा जाता है कि अगर परंपरा को स्ट्रॉन्ग, सबसे स्ट्रॉन्ग परंपरा अगर आपको जाननी है, तो वो परंपरा हमेशा सुप्रीम लॉर्ड से स्टार्ट होनी चाहिए। देन दैट विल बी द प्रॉपर परंपरा। सुप्रीम से अगर स्टार्ट करेंगे तो वी नो दैट वी आर गेटिंग द हाईएस्ट नॉलेज। तो भगवत गीता 4.2 में कृष्णा कहते हैं, एवं परंपरा प्राप्तम एवं राजर्षयो विदुः। तो आप देखते हैं, ये मैंने एग्जांपल लिया है हरे कृष्णा मूवमेंट, जहाँ उन्होंने अपनी परंपरा को बहुत ही अच्छी तरह से प्रेजेंट किया है। जिनकी परंपरा शुरुआत होती है लॉर्ड श्री कृष्णा से, जहाँ ब्रह्मा नारद व्यास माध्वाचार्य से होती हुई
अंत में ये खत्म हो रही है। एसी भक्ति वेदांता स्वामी प्रभुपाद, जो इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हैं। तो आप देखते हैं कि इस तरह की परंपरा से हम समझते हैं कि हम जो ज्ञान ले रहे हैं वो दिव्य ज्ञान है, और उसका ओरिजिनल टीचिंग, ओरिजिनल पर्पस, ओरिजिनल लर्निंग जो है प्रिजर्व करे गए हैं। यहाँ आप देखते हैं कि हमेशा जो गुरु है वो अपने प्रीवियस गुरु, उससे प्रीवियस गुरु, उन्होंने जो रिपीट किया है वो सिर्फ रिपीट ही कर रहे हैं। दे आर बिहेविंग लाइक अ पोस्टमैन। तो एक पोस्टमैन जो होता है वो एक लेटर को लेटर बॉक्स से जो डेस्टिनेशन है वहां तक पहुंचाता है, उसमें अडल्ट्रेशन नहीं करता। तो एक सच्चा गुरु भी उस सुप्रीम लॉर्ड के दिए हुए ज्ञान को आप तक पहुंचाता है, उसमें कभी चेंज करने की कोशिश नहीं करता। हाँ, उसके समझाने का तरीका अलग हो सकता है, बट वो ज्ञान की ओरिजिनल टीचिंग जो है हमेशा एक अच्छे डिसाइप्लिक सक्सेशन में हमेशा प्रिजर्व करी जाएंगी। अब आप कहेंगे जी ये तो थोड़ा स्पिरिचुअलिटी साइड की परंपरा होगी, क्या आप रियल लाइफ एग्जांपल दे सकते हैं? तो यहाँ पे बात आती है परंपरा ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग की। मेरे ख्याल से इन तीनों व्यक्तित्व का नाम बताने की मुझे जरूरत नहीं है। परंपरा शुरू हुई बेंजामिन ग्राहिम के साथ, जो वैल्यू इन्वेस्टिंग के फादर कहा जाते हैं। उनके उनके शिष्य बने वॉरेन बफेट, और वॉरेन बफेट के शिष्य बने मोनीश प्रभराय। तो आप देखते हैं किस तरह से परंपरा मेंटेन हुई। आप इन तीनों की कभी भी इनकी कोई बुक्स पढ़िए आप, या इनके कोई इंटरव्यूज पढ़िए आप देखते हैं तो ये तीनों एक ही तरीके की बात कर रहे हैं। इनके समझाने का तरीका अलग अलग हो सकता है, बट द ओरिजिनल टीचिंग ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग इज बीइंग प्रिजर्व। और वहीं आप किसी नॉर्मल फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर को कह रहे हैं जिसने अपने 2 या 4 साल के एक्सपीरियंस से कुछ सीखा है, तो आप देख सकते हैं कि इनकी कही भी बातों में और एक नौसिखिए की कही बातों में जमीन आसमान का फर्क है। तो इसी तरह से रियल और फेक गुरु में आप डिफरेंस कर सकते हैं। जहां आप देखते हैं कि वैल्यू इन्वेस्टिंग की परंपरा फॉलो हो रही है, तो आप ट्रस्ट कर सकते हैं कि वॉरेन बफेट जो कह रहे हैं या मनोज पब्राय जो कह रहे हैं वो वही है जो बेंजामिन ग्राहिम ने कहा, और आप उसको अपनी जिंदगी में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो इसलिए परंपरा की हमेशा से जरूरत रही है। फिर बात आती है कि हमने ये सीख लिया कि भाई इग्नोरेंस में है, हमें नॉलेज की जरूरत है, उसके लिए हमें गुरु चाहिए। हमने गुरु की डेफिनेशंस मीनिंग सीख लिए। हमने ये भी जान लिया कि रियल गुरु तक कैसे पहुंचे। बट ये सब सुन के आजकल की जनता तो कहेगी भाई ये तो थोड़ा सा मुश्किल है, ये मुझसे नहीं हो पाएगा। तो ये मैं नहीं कर सकता। अरे भाई मेरी नौकरी है, मेरे बीवी बच्चे, मेरा परिवार है, अब मैं कहाँ जाकर गुरु ढूंढता फिरूंगा? तो दोस्तों उसके लिए एक सिंपल सा जवाब है, सिंसेरिटी और ईमानदारी। जी हाँ दोस्तों, आपकी ईमानदारी ही वो चुंबक है जो सफलता को आपकी तरफ अट्रैक्ट करेगी। इफ यू वांट टू बी चीटेड, यू विल फाइंड मैनी चीटिंग गुरुज, बट इफ यू आर सिंसियर, यू विल फाइंड अ सिंसियर गुरु। तो इसमें मैं एक एग्जांपल देके बताना चाहूंगा। आप जैसे इन्वेस्टिंग में देखते हैं, तो बहुत सारे आजकल वीडियोस चल रहे हैं, ऐड चल रहे हैं, जहाँ वो कह रहे हैं ये स्टॉक खरीद लीजिए, आज 10 रुपए का है, कल 1000 रुपए का हो जाएगा, 1 लाख का हो जाएगा। है ना, पेनी स्टॉक्स लोगों को दिए जा रहे हैं, लोगों को कहा जा रहा है क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर लीजिए। तो बहुत सारे तरीके बताए जा रहे हैं उनको। और जो जो लोग ईमानदार नहीं है, जो धोखा खाना चाहते हैं, वो ऐसे लोगों को फॉलो कर रहे हैं और अंत में अपना नुकसान करे जा रहे हैं। वहीं पे कई कई अच्छे जो गुरु हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई आप पहले बेसिक फाइनेंस सीखिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ना सीखिए, कंपनी की एनुअल रिपोर्ट्स पढ़िए। बट वो सब मेहनत आप नहीं करना चाहते हैं, तो ऐसे लोग धोखा खाना चाहते हैं। वो एक ही दिन में करोड़पति अरबपति बन जाना चाहते हैं। तो वो ये दिखाता है कि वो लोग धोखा खाना चाहते हैं। तो डेफिनेटली वो किसी ऐसे ही चैनल से सब्सक्राइब होंगे, या किसी ऐसे ही कोर्स में, या किसी ऐसे ही गुरु के पास जाएंगे जो जिनके साथ वो धोखा खाएंगे। तो आपकी सिंसेरिटी ही ये डिटरमाइन करती है कि आप एक सही गुरु के पास जाएंगे या नहीं जाएंगे। तो शिष्य की ईमानदारी ही सही गुरु तक ले जाने का एक मात्र माध्यम है। इसी के बारे में कहा गया है कि इफ यू आर सिंसियर, देन गॉड सेंड यू द रियल गुरु। परमात्मा जो हमारे चैत्य गुरु हैं, जो हमारे हृदय में विद्यमान है,
हम कितने सिंसियर हैं, कितने ईमानदार हैं, इस बात का जवाब परमात्मा से अच्छा कोई नहीं दे सकता। कभी कभी हम अपने आप से झूठ बोल सकते हैं, लेकिन हम उस परमात्मा से झूठ नहीं बोल सकते हैं। तो हमारी सिंसिरिटी को मेजर करने के लिए जो विद्यमान है वो परमात्मा ही है। आप कभी ये नहीं कह सकते कि भगवान ने मुझे किसी फेक गुरु के पास पहुंचा दिया, जी नहीं। क्योंकि आप सिंसियर नहीं थे, आप धोखा खाना चाहते थे, आप धोखेबाज थे, इसलिए आप एक धोखेबाज गुरु के पास। तो सुपर सोल पर परमात्मा हमेशा आपकी सिंसियरिटी चेक करते हैं और उसी के हिसाब से आपको गुरु के पास पहुंचाते हैं। तो आप और कुछ कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, बट प्लीज ईमानदार बनिए, सिंसियर बनिए। मैं कहता हूँ प्रे करिए उस भगवान से, आप जिसे भी मानते हैं, कि प्लीज मुझे रियल नॉलेज की तरफ ले जाइए, मुझे इस अज्ञानता के अंधकार से बाहर निकालिए। एंड देन बिलीव मी दोस्तों, गॉड विल हेल्प दोज हु रियली वांट टू हेल्प देमसेल्फ। तो अगर आप सिंसियरिटी शुरुआत करेंगे, तो मैं कहूंगा सक्सेस पाने के लिए फिर आपके पास सिर्फ तीन ही स्टेप रह जाते हैं। तो पहला स्टेप हो गया अपनी सिंसेरिटी के थ्रू एक बोनोफाइड परंपरागत गुरु के पास पहुंच जाना। उसके बाद दूसरा आपका स्टेप है टू स्टैब्लिश रिलेशनशिप विद दैट रियल गुरु, एंड देन फाइनली एक्ट अकॉर्डिंग टू दैट रिलेशनशिप। बेस्ड ऑन दैट रिलेशनशिप, वॉट एवर नॉलेज दैट यू हैव गेट, ट्राई टू एक्ट यूजिंग दैट नॉलेज इन योर लाइफ। कहते हैं गुरु से आपने ज्ञान लिया है, उसे विज्ञान में बदलना चाहिए, उस नॉलेज को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। हम देखते हैं, हम 11th और 12th क्लास में होते हैं तो हम साइंस के बहुत सारे फॉर्मूलाज पढ़ते हैं, बट हम जब लेबोरेटरी में उसे टेस्ट करते हैं तो वो ज्ञान हमारा पक्का हो जाता है। तो इसी तरह ज्ञान को विज्ञान में बदलना है, नॉलेज को रियलाइजेशन में कन्वर्ट करना है, ये हमारी जिम्मेदारी है। तो अगर ये तीन स्टेप्स हम फॉलो कर रहे हैं, तो यकीन मानिए दोस्तों, हमें सक्सेस तक पहुंचने से फिर कोई नहीं रोक सकता। तो लास्ट में मैं ये समराइज करना चाहूंगा कि हमें एक एक्सपर्ट बोटमैन बनने की जरूरत है। अब आप कहेंगे यहाँ बोटमैन कैसे आ गया? तो एनोलॉजी कुछ इस तरह से दी जाती है। आप देखते हैं कि ये बोटमैन जो है, अपने दो हाथों में इनके दो पतवार हैं। तो इन दो पतवार को मैं कहूंगा, एक पतवार जो है वो इंक्विजिटिवनेस है, आपकी जिज्ञासा है। दूसरी पतवार है वो आपका थॉटफुल, विचारशील होना है। तो अगर आप इंक्विजिट हैं, थॉटफुल हैं, और अपनी सिंसिरिटी से अगर एक आपने बहुत अच्छी बोट ले ली है, तो वो बोट एक रियल गुरु है। अब अगर आप एक एक्सपर्ट बोटमैन बन के अपनी जिज्ञासा और विचारवानता के साथ उस गुरु के साथ अपना सफर शुरू करते हैं, तो यकीन मानिए दोस्तों, आप अपने किनारे तक जरूर पहुंचेंगे। आपकी ह्यूमन लाइफ का जो गोल है, आप उस गोल तक जरूर पहुंचेंगे। तो you just have to become an expert boatman and use the two bows of inquisitiveness and thoughtfulness, and use that Guru Namak boat, and then just cross over this material ocean and reach to your full potential, reach to your destination, and fulfill your human form of life. So that's all from my side. Thank you for patiently listening. मैं जानता हूँ आज का थोड़ा ये सेशन हमारा लंबा हो गया है, बट मैं चाहता था कि हम अच्छे से डिस्कस करें ताकि हम चीज़ों को अच्छे से समझ सकें। अगर इस बारे में आपके कोई भी सवाल हैं, तो प्लीज़ कमेंट्स में लिखिए। मैं तो अपनी पूरी कोशिश करूंगा उन सवालों का जवाब देने के लिए, जिनका जवाब मुझे पता है, और जिनके मुझे आज नहीं पता, मैं खुद इंक्विजिट और थॉटफुल होकर क्वेरीज करूंगा, सो दैट आई कैन ट्राई टू गेट एन आंसर्स टू योर क्वेश्चंस, एंड वी ऑल कैन लर्न समथिंग। लेट्स जस्ट बिकम। इस जिज्ञासा चैनल का मकसद ये है, अगर आप मेरे इस किए हुए एफर्ट से आपको लगता है कि ये आपके लिए यूजफुल है, तो प्लीज इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। कहते हैं ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो प्लीज, अगर ये चैनल के माध्यम से आपको थोड़ा भी ज्ञान प्राप्त हो रहा है, तो प्लीज इसे शेयर करिए अपने दोस्तों के बीच, अपने प्रियजनों के बीच। और मैं आपसे जल्दी ही मिलता हूँ अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा 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 हरे हरे।